वेलकम टू द फर्स्ट जॉब। आज हमारे साथ एक बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, हर नेम इज रजनी मलिक। She has studied from YCC in Nagpur. She did her graduation from YCC in IT department, I guess. IT. Yes, in IT department. She has done her post graduation as well from BITS Pilani. Post that, currently right now she is posted in, or she is currently based in Luxembourg, and she works for a bank. I guess she works for BNP Paribas. So this was a very short introduction of Rajni. Now I would hand it over to Rajni to just introduce herself. Rajni. Okay. Hello, everyone. And it's pleasure. Very happy to be here. To collaborate with friends, you know. It's not कि कोई बाहर का है. First of all, congratulations. I'm really happy कि आप लोग यहाँ पे नागपुर में ये शुरू किया and you are helping all these students to break that barrier, you know. So from students to land their first job and be independent in this world. I wish we had someone like that when we were doing our graduation, but it's fine. So as you mentioned, I graduated 2005 YCC, and it's almost gonna be 20 years. With a little bit hiccups here and there, I have almost 18 years of work experience, and mainly in the insurance and finance domain. Okay. Completely through and through in IT. Different roles, of course. And right now, it's almost 8 years I'm in Luxembourg. I work for BNP Paribas in private equity domain as a product manager. It includes lots of responsibilities, from just doing a simple testing to go back, work with different clients from all over the world, or work with different development team, which is based in Germany, Munich, work with my current team, which is in Luxembourg, work with our clients, and then make sure that the product life or the pipeline is in place. Other than that, of course, I have like a long journey of working in Pune and Bangalore. We can go in detail later we'll as get well. to that. Yes. So that's pretty much my current situation is. Okay, that's a very, very big introduction, and for a big personality, I could say. Not big, too big, but it is pretty big. At least for the people of from our region, yes, it is big, and people or the students, especially the freshers, they would look up to you for this. So the first question which I generally ask to my panelist is, how did you land up to your first job? आपको आपकी पहली जॉब कैसे मिली? क्या आपके स्ट्रगल्स थे? इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्टली आपको जॉब लग गई, या यू हैड टू गो थ्रू सम अप्स एंड डाउन्स जो शायद सभी को आते हैं? तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू. एवरीथिंग जो भी बोला है सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें. इनफैक्ट लैंडिंग इंजीनियरिंग ऑल्सो अ बिग स्टोरी फॉर मी. मुझे बचपन से पापा इज लाइक हाँ लड़कियों के लिए सेफ है, डॉक्टर बन जाओ. मेरे अंकल भी डॉक्टर है, तो टिल 12th स्टैंडर्ड यही था कि डॉक्टर बनो. बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे वो पसंद है नहीं है. आई वांटेड टू डू इट फॉर माय फादर. तो जब मैंने मेडिकल के एग्जाम दिए, आई वाज शॉर्ट बाय आई थिंक 3% और समथिंग, तो MBBS मिला नहीं, एंड देन मुझे फिर कुछ और करना नहीं था, तो बैकअप इंजीनियरिंग. मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो मे बी करना नहीं चाहते, बट उनके पास चॉइस नहीं होती है, क्योंकि जब हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमें बस इंडिपेंडेंट बनना होता है, फैमिली को सपोर्ट करना होता है, और कोई बाय चॉइस भी है, दैट इज वेल एंड गुड. अगर आप वो चीज पढ़ रहे हो जो आपको पसंद है, दैट्स नथिंग लाइक दैट. बट अगर नहीं भी है तो ऑलवेज गिव योर बेस्ट. वो मेरा एटीट्यूड था. तो ठीक है, फिर जब मेरा एडमिशन भी नोबडी वाज देयर. मैं खुद अपना DD बनाया और जाके VNIT में जो
काउंसलिंग होता है, एक राउंड होता था। लेकिन आई वाज ऑलवेज फोकस कि मुझे अगर ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, मैं फोकस करती थी कि मुझे क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो निगेशन ऑलवेज हेल्प्स। यस, तो मुझे सिविल नहीं चाहिए वो था, ऑप्शंस रूल आउट कर देता है। एग्जैक्टली, निगेशन कर लो। ये इट हेल्प्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब सिर्फ ये पढ़ाई नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में भी अगर आप डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन है तो पहले वो निकालो जो आपको नहीं चाहिए, फिर वो इजी होता है। तो मुझे मैकेनिकल नहीं चाहिए था, सिविल नहीं चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे वो सर्किट समझ में नहीं आते थे, तो बचा कंप्यूटर। जबकि 2000 में देयर वाज अ रिसेशन, तो इतना Y2K का रिसेशन था, तो इतना लिक्विडिटी नहीं था कंप्यूटर्स, बट आई वाज लाइक ठीक है, कुछ ना कुछ कर लूंगी। तो आई टुक माई एडमिशन एंड देन ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो आई थिंक इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, इनफैक्ट हमारे बुक्स भी नहीं थे आईटी के। तो हम लोग कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नोट्स लेते थे, रामटेक में 1 साल पहले शुरू हुआ था तो कुछ उनके नोट्स मिल जाते थे। ऐसे करके हमने हमारी पढ़ाई की उस टाइम पे, नोट्स से पढ़ते थे हम लोग। हमारे पास कोई, अभी तो पता नहीं वो सब है क्या, G4 गाइड जो होते थे उस टाइम पे, होते ही होंगे। अभी भी कुछ होते होंगे, तो हमारे ब्रांच के लिए नहीं था। VBD, तो हमारे ब्रांच के लिए नहीं था, तो वी यूज्ड टू मेक आवर ओन नोट्स। बट इस प्रोसेस में ये हुआ कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जॉब के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। सोचना इन द सेंस, मुझे पता ही नहीं था, मुझे कोई बताने वाला, मेरे फैमिली में कोई इंजीनियर नहीं था। मेरे फादर के जनरेशन में सब लोग छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब करते थे, एक अंकल डॉक्टर थे बस। तो मैं अपनी पढ़ाई करती थी और जो भी फ्रेंड्स से पता चले जो भी है। हम लोग जब 3rd ईयर में गए, बहुत सारे बच्चों ने MBA के क्लासेस लगाए थे, बट आई थिंक दैट यूज्ड टू कॉस्ट अराउंड 20,000। तो मेरे पास उतने थे नहीं, तो मैंने क्लासेस नहीं लगाए, क्योंकि मैं बोला MBA करना नहीं है तो क्लास क्यों लगाना। I think that was one mistake. I would say now, it's like mistake or no, but depends. Like जब फाइनल ईयर में कैंपस आने लगे, तो जिन्होंने MBA क्लासेस लगाई थे, फॉर देम इट वाज इजी टू डू एप्टीट्यूड, टू क्लियर द एप्टीट्यूड एंड GDPI। और मुझे तब पता चला कि अरे ऐसा भी कुछ होता है। तो वो एक वो अग्रवाल की बुक थी, बट RS अग्रवाल, लेकिन आप अकेले वो उतना समझ नहीं सकते, उसको कर नहीं सकते। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली अपीयर होने के लिए, बट मेरा एप्टीट्यूड निकलता नहीं था, एंड इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि आई नेवर फेल, तो वो थोड़ा टफ था। इट्स ऑल राइट, बट आई थिंक दैट वाज वन थिंग व्हिच अगर हो जाता अच्छा रहता। एक इसमें ये भी है रजनी, that when we are in our college, so our competition is only with our college. Yeah, it was. Once you get out of the college, your competition is with thousands and thousands. You won't believe. Yes. So that's why I think कि जिनका कॉलेज में हो गया वो अच्छा था, क्योंकि then immediately कॉलेज के बाद अब अपना काम करना शुरू करते हैं। तो मेरे केस में ठीक है, कॉलेज में मेरा नहीं हुआ, तो now what to do next? तो सब मोस्टली पुणे जा रहे थे, तो चलो पुणे चलो। वो भी मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना, क्या करना। मेरे इतने फ्रेंड्स थे नहीं। मेरी बस एक स्कूल की दोस्त थी जो पुणे में रहती थी, ऑलरेडी MBA कर रही थी, तो मैं उसके पास गई एंड आई वेंट विद फाइनाइट 10,000 कैश इन माय हैंड। और मुझे ये नहीं पता था कि पैसे कब तक चलेंगे और कैसे मैनेज करूंगी। वहां पे फिर ये भी नहीं पता था कि आपको इंटरव्यू कॉल आएंगे नहीं आएंगे। कहीं से न्यूज आती थी कि हाँ यहाँ पे वॉक इन हो रहा है। आई डोंट नो इफ दैट इज स्टिल रिलेवेंट आज के दिन में। आई नो कि अभी ऑनलाइन काफी एप्लीकेशंस होते थे। उस टाइम पे कुछ एक फ्रेशर का वेबसाइट होता था, फ्रेशर्स वर्ल्ड, यस। तो ऑलवेज चेक, वहां पे आप अप्लाई करते रहो। मैंने फिर पुणे में एक पंकज गांधी एकेडमी है, वेरी गुड। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट गाय, लाइक आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद हिम। एप्टीट्यूड का एकेडमी था शारदा सेंटर में। हाँ, आई थिंक अभी भी है। नाउ आई डोंट नो, बट हाँ, आई रियली एडमायर दैट गाय कि उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बहुत जल्दी सिखाया बच्चों को, और मैंने उन्हीं से बहुत अच्छे से सीखा वो एप्टीट्यूड का जो भी है, एंड उसी से मेरा वो TCS का भी क्रैक हुआ था।
फिर पुणे में रही मैं, आई वेंट आई थिंक जुलाई में, अक्टूबर तक मैं रही वहाँ पे, जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ्स। उसमें जितने भी वॉक इन हुए सब दिया, एंड वैसे ही एक पटनी का कैंपस था, मैं गई, उन्होंने बोला कि कुछ हो नहीं रहा, बहुत भीड़ है, आप अपना रिज्यूम देके चले जाओ। मुझे लगा कुछ नहीं होगा, मैं चली आई, एंड आई थिंक दैट टाइम माय ग्रैंडमा एक्सपायर्ड, तो मैं नागपुर आ गई थी। मम्मी को ये हो गया था, चिकनगुनिया भी हो गया था, तो दैट्स लाइक अ पर्सनल साइड। मैं नागपुर आ गई और फिर सोच रही थी क्या करूं, मतलब वापस जाऊं नहीं जाऊं। नागपुर में मैंने नागपुर में भी बहुत ट्राई किया, बहुत सारे जो भी छोटे मोटे कंपनीज होती थी, मैं इंटरव्यूज दिए, परसिस्टेंट में भी एग्जाम्स दिए, बट मेरा डेटा स्ट्रक्चर वीक था, तो परसिस्टेंट नहीं हुआ मेरा। आई थिंक 2 राउंड्स के बाद फिर नहीं हुआ मेरा, वो थोड़ा एडवांस एग्जाम था। मैंने इनफैक्ट वाईसीसी वापस गई, और क्योंकि मेरे टीचर्स, बिकॉज आई टॉप्ड माय ब्रांच फाइनल ईयर में, और उसके पहले के ईयर का जो भी एनुअल इवेंट था, तो आई हैंडल्ड द फाइनेंस, तो मेरे सारे, आई हैड अ गुड नेम इन कॉलेज, तो उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ नहीं होता है, आ जाना, यू कैन वर्क एज अ लेक्चरर। वो भी मेरा एक एक्चुअली पैरेलल इंटरेस्ट था, बट एट द सेम टाइम आई वांटेड टू मेक मनी आल्सो, क्योंकि मुझे मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर करनी थी। बट फिर पटनी वालों ने मुझे फिर अप्रोच किया कि आ जाओ, और इस बार आपको रिटर्न और जीडीपीआई देना है। okay. तो टिल देन मेरा वो सब प्रिपरेशन हो गया था। 6 मंथ्स में एप्टीट्यूड, जीडी कैसे अच्छे से करना है, हाउ टू बी लाइक, अगर 10 लोग हैं तो अगर आपको उसमें से टॉप 2 होना है, तो यू हैव टू बी रियली लाइक एकदम कॉन्फिडेंट होना है, असर्टिव होना है, वो सब चीजें तो सब हो गया था, और वो मेरा क्लीन हो गया। फिर मैं वापस नागपुर आ गई, क्योंकि वो एक्सपेंसेस भी थे वहां रहने के, प्लस आपको सर्टेन नहीं था कि आपको कब मिलेगा। तो फिर उन्होंने काफी असाइनमेंट्स दिए, तो घर बैठ के वो असाइनमेंट्स करो, सबमिट करो। तो उसके बाद फिर उन्होंने प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए बुलाया, उसमें जावा, एक्सएमएल, डेटाबेस, और भी आई थिंक 2 कुछ और थे, मुझे अभी याद नहीं है। उसका कुछ 3 मंथ्स का ट्रेनिंग कोर्स था। okay. यू फिनिश दैट एंड देन दे विल गिव यू प्रोजेक्ट्स। okay. तो वो ट्रेनिंग अराउंड 1 मंथ के बाद, बट उसमें ये था कि अगर तुमने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया देन यू विल हैव टू गो। तो मैं बोला यार, इतनी मेहनत के बाद भी, मतलब देयर इज नो श्योरिटी दैट यू गॉट योर जॉब। सो ट्रेनिंग के बाद आई गेस कोई टेस्ट होता था, एग्जाम्स होते थे, आफ्टर एवरी ट्रेनिंग देयर वाज एग्जाम। तो this used to be the thing that that time in every company, I guess every company it was a thing, like you even टेक महिंद्रा का भी था, जो कैंपस से भी लिए थे उस टाइम पे, उन सबकी ट्रेनिंग हुई थी, और वो ट्रेनिंग में आपको अगर क्लीन नहीं हुआ तो देन यू हैव टू लीव। हाँ, वो उस टाइम पे एक वो काइंड ऑफ पैटर्न ही था वैसे। यस। फिर जब, बट आई डिडंट एंजॉय कोडिंग, मतलब आई नेवर शाय अवे फ्रॉम सेइंग कि मुझे क्या पसंद नहीं है। बहुत ओपनली मैं बोलती हूँ ये चीजें, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि, प्लस ना काइंड ऑफ फोर्सफुल था कि हाँ तुम डेवलपमेंट कर रहे हो तो सैटरडे भी आओ, बाकी दिन भी 8 o'clock रहो। मैं बोला अगर मैं अपना काम जल्दी खत्म कर रही हूँ तो व्हाई कैन नॉट आई गो होम, आई नीड माय पर्सनल टाइम टू डू समथिंग एल्स। तो लकीली उस टाइम पे पटनी में उन्होंने एक डिफरेंट सेक्शन बनाया जो सिर्फ टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए था, क्योंकि उनके पास टेस्टिंग के भी बहुत प्रोजेक्ट्स आते थे, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, बड़ी बड़ी टीम थी। एंड दे सेड कि ज्वाइन कर लो इसमें, अगर आप ये कर लोगे तो आपका कंफर्म है जॉब, मतलब उनका ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं बोला चलो एटलीस्ट इसमें जॉब श्योरिटी है। तो मेरे बैच से हम 4 लोग वो ज्वाइन किए थे, उसमें एक बंदा था, उसको वैसे भी एमबीए करना था, और 2 लड़कियां, एक को तो शादी करनी थी तो उसको इतना कुछ था नहीं, और एक और बंदी और मैं थे। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे टेस्टिंग को बहुत टैबू समझते थे, और शायद अभी भी समझते हैं, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इट्स अ ब्यूटीफुल करियर। अगर आपको किसी के इसमें नहीं पढ़ना है कि लोग क्या कहेंगे, वो छोड़ो, अगर आपको सही में पसंद है तो आप करो, क्योंकि वही एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आप जब वो चीज करते हो जो आपको पसंद है,
आप एंजॉय करते हो एंड यू पुट मोर एफर्ट इन दैट। और मुझे एनालिसिस बहुत पसंद था, तो मैं जब टेस्टिंग करती थी मैं इतने बग्स निकालती थी कि मेरे डेवलपर्स परेशान हो जाते थे, क्योंकि मुझे वो इतना पसंद था कि अरे ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। मैं कभी कभी ये करूंगी तो क्या हो जाएगा इसमें, मतलब इन्होंने ऐसे क्यों बनाया। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि, और फिर डोमेन, मतलब मोस्टली टेस्टिंग के लिए आपको डोमेन नॉलेज चाहिए कि वो हम क्यों कर रहे हैं। तो मैं बहुत जल्दी डोमेन सीख जाती थी उसकी वजह से, जो मुझे बहुत हेल्प करता था। मतलब आप टेक्निकल तो सीखते हो, बट आप जब उसको डोमेन के साथ कंबाइन करते हो, यू गिव अ कंप्लीट पैकेज। यस यस, दैट इज तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रू। वो मैं ज्यादा कर पाई। um, तो फिर वो टेस्टिंग का प्रोजेक्ट शुरू हुआ एंड दैट्स हाउ माय फर्स्ट जॉब वाज कंफर्म्ड इन पटनी। I got a project which was a good project. I got a team lead जो कि काफी supportive थे, and because maybe sometimes it helps, you know, जो आप अपने capacity से थोड़ा छोटा job ले लेते हो तो you do like too much, like excel करते हो। Within a month I was recognized and everything, like मे बी शायद मैं डेवलपमेंट में रहती तो स्ट्रगल करती, आई डोंट नो, मे बी अच्छा करती, बिकॉज आई वाज समवन हु डोंट गिव अप। तो आई डोंट नो दैट साइड ऑफ इट, बट मुझे आई नीडेड अ श्योरिटी कि मेरे पास जॉब है। आई डोंट वांट टू गेट बैक टू द स्ट्रगल अगेन व्हिच आई डिड फॉर लाइक ऑलमोस्ट 8 months। So that was my first job. So I was graduated 2005, but I think it was January 2006 that you landed up. I landed up my first So job. it was, say, a struggle of almost 8 odd months. 8 months for sure. 6 to 8 months. With limited amount of money. Oh, that money. Yeah. I still remember. वो भी पापा से लिया नहीं था। 2000 तो शायद रेंट ही होता था। रेंट प्लस, हाँ, मेरे रूममेट्स वो सब 2000 कुछ मेस वेस का। मेरे रूममेट्स मूवी के लिए पूछते थे। मैं बोला देखो, एक मूवी का टिकट 100 रुपीज होता है। हाँ। मैं नहीं आऊंगी। हाँ। एक बस का हम लोग पास बनाते थे, लेकिन हाँ। मेरे घर से जो मेरा क्लास जो पंकज गांधी का होता था, आई थिंक 5 रुपीज का टिकट होता था। तो मैं हमेशा एक स्टॉप पहले उतर जाती थी। 3.5 रुपीज होता था, एंड देन आई वॉक। आई लव वॉकिंग, आई स्टिल वॉक। मुझे उसमें कुछ बुरा नहीं लगता। आई जस्ट लव वॉकिंग। तो लेकिन उस टाइम पे एक बार लिटरली मेरा पास एक्सपायर हो गया, और मैं बोला कि कुछ तो था कि मैं उसके बाद घर आने वाली थी, तो मैं बोला नया पास क्यों बनवाऊं। तो मैं बिना टिकट के चढ़ गई और उसी दिन चेक किया। तो मैं बोला ठीक है, मैं उतर जाती हूँ, मतलब मेरे पास नहीं है पैसे। तो नाउ आई थिंक लाइक 1.5 रुपीज। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे पास नहीं थे, आई कुड मैनेज। मैं मांगती तो पापा दे भी देते, बट मुझे वो फील होता था कि नहीं, मुझे उनसे नहीं लेना है। Probably that is the reason you work in finance right now. Yeah, exactly. मतलब मैंने पापा से सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि तब मेरे पास, मैं भी ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैं पार्ट टाइम ट्यूशंस वगैरह लेती थी। आई यूज्ड टू मेक लाइक 1000 रुपीज अ मंथ और सो, बट मैं करती थी। आई वाज ऑलवेज दैट फोकस कि आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट, आई हैव टू be in a position कि मुझे किसी से लेना ना पड़े। प्लस आई वांटेड टू हेल्प अदर्स फॉर फैमिली, फॉर सोसाइटी, और जो भी है, जो भी नीड में है, कोई मुझे मांगे तो मुझे ना बोलना पड़े। वो मेरा एक एटीट्यूड था। सो with everything together, so that's how my first job was. Okay, that's an interesting story. Yes. So you landed up in your first job and you started working as a QA, right? Yes, in a testing. QA. Yes, yeah. Testing. So I remember, I still remember in those days, testing used to be thought of कि यार ये तो testing में है, इसको कुछ नहीं आता, IT में हुआ तो भी क्या हुआ testing में। But testing guys, code चाहे लिखे चाहे ना लिखे, उनका domain knowledge is always better than developers. Right? Developers have their own skill set, no doubt in that. But testing and important testing is the base. जो pyramid एक है, उसमें testing is the base, right? So if testing अगर गड़बड़ होता है, तो entire pyramid starts falling. अभी आपने वो देखा ना 2 दिन पहले क्या हुआ Microsoft? Yes. That is. तो कोड तो ठीक है, आप लिख दो कोड, अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो entire world came to a standstill. Exactly.
एंड इमेजिन आप कोई ग्लिच डाल रहे हो लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट में, सॉफ्टवेयर में, तो क्या हो सकता है? तो it's a mindset. Every work is important. Yes. तो yes, every work is important. सब कुछ Exactly. in amalgamation ही होता है, एक में के साथ ही होता है, जो भी. One thing on testing which I would like you to ask is कि as a fresher, right? मुझे टेस्टिंग में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती. The reason being that एक तो रीजन ये है कि दोज हु आर स्कैर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग या कोडिंग, वो लोग सब टेस्टिंग में जाने की कोशिश करते हैं. दैट इज व्हाट दे ट्राई टू डू. तो इतनी कंपटीशन है उसमें. So let's say if there are 100 people who are looking for a job, so out of those 100, 90 people do not want to code. They are scared of coding. And जो ये 90 लोग हैं, they all try to get into. Earlier they used to get into testing. Now they're also shifting to the other category, which is data engineering. And recently data engineering. But ये दो वो fields हैं जिसमें direct entry is very difficult. It's not that easy. So one thing is again I will मतलब philosophical लगेगा सुनने में, but it's not philosophical. आप कुछ चीज avoid कर रहे हो क्योंकि वो tough है. जब आप ये अप्रोच अपनाते हो तो आप आगे नहीं बढ़ते हो. बेसिकली आप खुद को पीछे लेके जाते हो कि अभी अगर आप बोलोगे टेस्टिंग या डेटा इंजीनियरिंग, एटलीस्ट आपको पाइथन आना चाहिए. टेस्टिंग में ऑटोमेशन आना चाहिए. मैनुअल टेस्टिंग तो कोई वैल्यू नहीं करता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, आप मुझे पूछोगे अगर जैसे मैंने करियर शुरू किया था, हाँ मैनुअल टेस्टिंग था, बट मेरा फर्स्ट जॉब जो था वो मैनुअल नहीं था. मुझे यूनिट स्क्रिप्टिंग का प्रोजेक्ट मिला था क्योंकि मेरा जावा ट्रेनिंग था, तो उनको कोई चाहिए था जो जावा स्क्रिप्टिंग करे. सो इट वाज अ प्रोग्रामिंग बट टू टेस्ट द प्रोडक्ट ऑन अ फर्स्ट हैंड. नॉर्मली जो डेवलपर होते हैं वो यूनिट टेस्टिंग करते हैं. अब हर जगह करते हैं कि नहीं पता नहीं. तो डेवलपर स्क्रिप्ट लिखते हैं उनके कोड को टेस्ट करने के लिए, तो वो स्क्रिप्टिंग हम करते थे. तो आपको एटलीस्ट कोडिंग करते नहीं भी आए तो भी आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है तो ठीक है, एडवांस कोडिंग तो यू नीड स्किल सेट. ठीक है, सेम इज फॉर टेस्टिंग. और क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि ये बटन या ये पेज करता क्या है और उसके पीछे का बिजनेस लॉजिक क्या है, तो आप एक अच्छे टेस्टर भी नहीं बन सकते हो. ठीक है, तो आपको टेस्टिंग करना है या कोडिंग करना है, जो भी करना है, यू हैव टू हैव अ अप्रोच जिसमें आप ये मत सोचो कि ये टफ है तो मैं नहीं करूंगा. आप ये सोचो कि हाँ मुझे ये करना है, बट इसके साथ साथ मैं चीजें पैरेलली सीखते रहूं जो मेरी स्किल को एनहांस करे. तो जब मैं टेस्टिंग कर रही थी, मैं एट द सेम टाइम मैं डेटाबेस कर रही थी क्योंकि आई लव डेटाबेस. आई स्टिल लव डेटाबेस. मुझे बहुत पसंद है डेटाबेस क्वेरी लिखना. मे बी आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट बेसिक डेटाबेस क्वेरी तो आप वो सीख सकते हो. ऑटोमेशन तो डेफिनेटली अगर आप टेस्टिंग में तो यू शुड नो ऑटोमेशन. ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग है तो यू कैन नॉट अवॉइड डूइंग कोडिंग. हाँ, इट्स नॉट दैट एडवांस लेवल जो डेवलपर करते हैं, बट आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए. तो आप डेटाबेस करो, आप ऑटोमेशन करो. फिर आई नो पाइथन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, और अभी के तो आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है. तो अगर आपको आउटस्टैंड करना है सबके बीच में, फुल क्राउड में, तो आप टेस्टिंग फोकस करो बिकॉज यू लाइक इट. आई वेंट फॉर टेस्टिंग बिकॉज आई लव्ड इट, एंड टेस्टिंग ने मुझे हेल्प किया टू बिकम अ गुड बिजनेस एनालिस्ट. पूरा बिजनेस को समझने में, प्रोसेस समझने में. मैं सिर्फ कोडिंग का पार्ट नहीं हूँ, बट एक्सेप्ट कोडिंग मैं सब कुछ करती हूँ. जो भी चाहिए सब कुछ करती हूँ मैं. मतलब रिक्वायरमेंट लिखने से लेके, एनालिसिस करने से लेके, कोऑर्डिनेट करने से लेके, डिलीवर करने के बाद क्लाइंट को ट्रेनिंग देना, डेमो देना, फिर उनके डेटा में इशू हुआ तो वो हैंडल करना. मतलब टिल इट गोज इन लाइफ इन साइकिल. तो एक्सेप्ट मैं हैंड्स ऑन कोडिंग छोड़ के मैं सब कुछ करती हूँ. ऑफ कोर्स मैं, ये मेरी जर्नी है. मुझे डे 1 में किसी ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है. मुझे सिर्फ इनिशियली दिया, हाँ तुम टेस्ट करो. बट उस टाइम पे मैं जब मेरा टेस्टिंग खत्म हो जाता था, मैं पूछती थी कि और क्या है जो मैं कर सकती थी.
तो उस टाइम पे डेटा रिकवरी का काफी चलता था, क्योंकि 2007-8 में लेमन ब्रदर्स हाँ कुछ इशू हुआ था। तो हम लोग काफी डेटा को सेफ रखते थे। तो उस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क चलता था। तो एवरी मंथ हम लोग पूरा जो जेसन होता था वो एसवीएन, तो उसका डेटा बैकअप होता था एंड देन वो डेटा को फ्लॉपी में डाल के हम लोग सेफ रखते थे। तो जब आप कुछ भी छोटा से शुरू करो, बट डोंट स्टॉप देयर, आप उसमें ऐड करते जाओ। और ये सिर्फ टेस्टिंग नहीं है, आप लाइफ के कोई भी फील्ड में जाओ, जब तक आप थोड़ा खुद को अलग नहीं करोगे, आप वो भीड़ का पार्ट रहोगे एंड यू विल नॉट गेट इट। आप कहीं आगे नहीं जाओगे। तो टेस्टिंग में कंपटीशन है, जब तक सिर्फ आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे कोई बोलेगा, ये अब थोड़ा सा मुझे बोलना नहीं है, बट मैंने देखा कि ये हमारी मेंटालिटी भी होती है स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हम स्कूल में भी टीचर हमें बोलता है, हम लिखते हैं, वही हम पेपर में छापते हैं, हम क्वेश्चन नहीं करते। और जब जो बच्चा क्वेश्चन करना चाहता है उसको भी कभी कभी चुप करा दिया जाता है। हाँ। तो ये ना काफी आगे तक जाता है कि कोई हमें बोलेगा और हम करेंगे, वो माइंडसेट से भी हमें बाहर निकलना है। कि हाँ कोई हमें बोलेगा या कोई हमें काम देगा, हम करेंगे, लेकिन हमें क्यों करना है? सो स्टार्ट आस्किंग दैट क्वेश्चन। और आपके काम को आप बेटर कैसे कर सकते हो वो आप रोज सोचो कि अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे एक लाइन लिखो, तो आप ये देखो मैं ये लाइन नीचे लिखूं, ऊपर लिखूं, बीच में लिखूं, लेफ्ट में लिखूं, राइट में लिखूं, कर्सिव लिखूं, स्मॉल लेटर लिखूं, मतलब सी देयर आर 10 ऑप्शंस। तो आपको जस्ट आउटस्टैंड करना है, इवन इफ इन सिंपल जॉब। और जब आप वो कर लोगे ना, तो आपका जॉब भले ही कितना भी आसान हो, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, नोटिस करेंगे, एंड देन दे विल गिव यू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा आपने ये अच्छा कर लिया तो आप ये ले लो। तो ऐसे ही करके फिर आप अपना करियर फिर आगे बढ़ा सकते हैं। Okay, good. So, post your engineering, you joined Patni Computer Systems way back in 2006. Yes. Right, and you worked there for? I was there till 2009. So you worked there for almost 3 years. Almost 3 years. Three plus years. Shy of 3 years. Okay. So you worked there for Patni. By the way, I now guess it's Capgemini. It's Capgemini. I mean, Capgemini took it over. बीच में I think iGate ने लिया, फिर बीच में iGate ने लिया था, and then Capgemini took over iGate. Okay, so Patni used to be a very big company. It was a big company. It was a big company. It was one of the Infosys, TCS, ये जो big shot mass recruiters है, उनमें से एक होती थी Patni. I remember that. तब even Tech Mahindra used to was called MBT, Mahindra British Telecom. I remember that as well. Okay. Then post Patni, after 2009, you left Patni and then you joined? I joined SunGard. Okay. तो पटनी में मेरा एक हमेशा फोकस अभी भी है, बट अभी लक्समबर्ग में वैसा इंडिया मार्केट जैसा नहीं होता है। बाहर का मार्केट नॉर्मली आप देखोगे, नॉर्मली एक इंसान एक जॉब में पूरा लाइफ निकाल देता है, क्योंकि इंडिया में 2-3 चीजें हैं। आप जॉब चेंज नहीं करते हो तो आपके पैसे बहुत कम बढ़ते हैं, आपको रोल्स नहीं मिलते हैं, लोग आपको ग्रांटेड लेते हैं, ये थोड़ा बहुत है। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ हर जगह है, बट है। तो इंडिया में मेरा अप्रोच बहुत अलग था। मैं लिटरली जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया, मेरा फोकस था कि मुझे सीखना है, कीप लर्निंग एवरी सिंगल डे, कुछ नया सीखो, एवरी मंथ कुछ नया सीखो। और मेरा आज भी होता है, मैं इनफैक्ट कल ही मम्मी को बोली, मैं वेकेशन पे हूँ, मैं बैठी हूँ, तो भी मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूँ कि मुझे 2 घंटे बाद लगे नहीं कि मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया। इवन इफ मैं रेस्ट कर रही हूँ तो आई शुड रेस्ट इट प्रॉपर्ली, मतलब ऐसे। तो उस टाइम पे भी मेरा ऐसा ही था। तो मैं जैसे 1 साल मेरा हो जाता था, आई कीप लुकिंग आउट जस्ट टू सी कि मेरा मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या या मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मेरा पहला इंटरव्यू देने गई, मैं अभी नाम भूल गई, अच्छी कंपनी थी, फाइनेंशियल कंपनी थी। उन्होंने मुझे बेसिक क्वेश्चंस पूछे टेस्टिंग के ही, और मुझे जवाब देना नहीं आया। तो मुझे तब समझा कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ टू गो आउट। तो मैंने ये इस तरह से आप खुद को एनालाइज भी कर सकते हो। मतलब आपको जॉब नहीं भी चेंज करना है तो भी आप 1-2 इंटरव्यूज दे दो, आपको समझेगा
कि आप या फिर आप अपने फ्रेंड को ही बोलो कि कुछ क्वेश्चन पूछो, टेस्ट मी. So it is really good thing that okay, we should be testing ourselves. Exactly, always. And we should be our own critic. Always. अगर हम खुद को आप अगर खुद पॉजिटिव माइंडसेट के अगेंस्ट जाता है ये, आई मीन फॉर मेनी पीपल, हाँ नहीं, पॉजिटिविटी, आई एम सुपर पॉजिटिव, दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ. मैं 2008 के I understand that. What I am trying to say is that what people think is कि अगर मैं खुद को ही क्वेश्चन करूंगा तो I am not a positive person. That is what people think. But that is absolutely that is a part of positivity. Yes, that is a part of positivity. आप जब क्वेश्चन करते हो तो आप बेसिकली खुद को एनालाइज कर रहे हो कि व्हाट आई नीड टू डू मोर. क्योंकि सबके पॉजिटिव स्ट्रेंथ और नेगेटिव स्ट्रेंथ होता है. तो पॉजिटिव स्ट्रेंथ तो ठीक है, अपने आप बढ़ता है, बट आपको नेगेटिव स्ट्रेंथ पे भी फोकस करना है कि अगर आपको एक ऑलराउंडर या सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो आपको फोकस करना है. तो फिर मैं 2000 फिर मेरा 2008 में एक्चुअली इन्फोसिस में हुआ, बट बिकॉज उस टाइम पे रिसेशन था तो वो मुझे ज्यादा पे नहीं कर रहे थे, मतलब मे बी 50,000 ज्यादा देन मैं करंट पे. तो मैं बोला फिर मैं क्यों छोड़ू, मतलब इट वाज. और तब तक मुझे ऐसा मैं कभी कंपनी या ब्रांड को इतना वैल्यू नहीं दिया. मैं आई प्रेफर्ड मोर कि मुझे अच्छा काम मिल रहा है और अच्छा पैसे भी ऑफ कोर्स नीड थी, और मुझे लोग मैटर करता है, मैं किनके साथ काम कर रही हूँ. अगर मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मैं वहाँ काम नहीं करती. दैट इज माई वेरी फर्स्ट थिंग. मेरा वो पर्सनल है, आई डोंट नो. मुझे ऐसा है कि आप मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं आपको दूंगी, सिमिलर है. फिर तो मैं आई स्टेड इन पटनी, बट मैंने प्रोजेक्ट चेंज कर लिया कि मैंने बोला था कि देखो मुझे बाहर से ऑफर है, आप मुझे जो प्रोजेक्ट चाहिए वो मैंने ले लिया. तो आई नेगोशिएटेड दैट. फिर 9 में जाके फिर You joined Sungard. I joined Sungard क्योंकि पटनी में that time it was like management change हो गया. आपको होते रहेगा. हाँ, ये सब these things are bound to happen. आपके जो आपको जो चाहिए आपको नहीं मिलेगा, तो you can still decide to stay or you can look out. It's up to you. वो कोई इशू नहीं है. और मेरा H1 भी हुआ था, but I think I don't know why I decided not to go. But उस टाइम पे मुझे अभी लगता है जाना चाहिए था, बट देखो रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है. उस टाइम पे आप कुछ डिसाइड मेरा जर्नी होगा मेरे लाइफ का कि मुझे लक्समबर्ग जाना होगा, तो मैं यूएस नहीं गई. तो फिर दिन मैंने सोचा कि अगर इंडिया में ही रहना है तो व्हाई नॉट चेंज अ जॉब. और मेरा पटनी के एक्सपीरियंस के बाद मैंने सोचा था कि मैं कोई इंडियन कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगी, क्योंकि क्या होता है वो थोड़ा इनिशियल जॉब के लिए ठीक है, बट वंस यू आर 3 years एक्सपीरियंस, 4 years एक्सपीरियंस, अगर आपको वो नहीं मिल रहा है करियर ग्रोथ में, तो यू शुड लुक. क्योंकि आपको ना फिर वो ऐसा होता है कि एक स्टैग्नेशन हो जाता है. आप सीखते नहीं हो, आप ग्रो नहीं करते हो, मनी वाइज तो करते नहीं हो, बट क्योंकि मैं अभी भी देख रही हूँ इतने साल बाद भी वो लोग अभी भी फ्रेशर्स को उतना ही पे कर रहे हैं, व्हिच इज सो अनफेयर. मतलब बट ठीक है, मतलब शुरू करने के लिए इट्स वेरी गुड. आप शुरू करो क्योंकि बहुत सीखते हो आप इंडियन कंसल्टिंग में. तो मैंने फोकस किया. लकीली मेरा एक फ्रेंड जॉब कर रहा था सनगार्ड में, उसने बोला तू ट्राई कर, मतलब देयर इज नो हार्म ट्राइंग. तो मैंने इंटरव्यूज दिए. थोड़ा टफ होता था उनका, बट हो गया. मतलब उनका रिटर्न 2 रिटर्न मैंने भी दिया था एक बार. हाँ, 2 रिटर्न्स होते थे, इंटरव्यूज होते थे. मेरा हो गया. फिर मैंने पटनी छोड़ा, बट वहां पर भी ऐसा हुआ कि आफ्टर अ मंथ उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें जो प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था वो प्रोजेक्ट बंद हो गया. और प्रोडक्ट कंपनीज का ये होता है, उनके पास बेंच सिस्टम नहीं होता है. जैसे टीसीएस वगैरह में होता है कि हाँ प्रोजेक्ट मिलेगा तब तक आप बेंच पे रहो, बट प्रोडक्ट कंपनीज में वो नहीं होता है. तो आई वाज बिट लाइक क्या करना है अभी. तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, आप हमारे पास 1-2 प्रोडक्ट और है, बस आपको आपका टीम चेंज हो जाएगा. मतलब आपका आप जिसके लिए ज्वाइन करने वाले थे वो मैनेजर नहीं रहे, आपका जिसने इंटरव्यू लिया था वो. मैंने बोला मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं है. तो एक्चुअली जो होता है अच्छे के लिए होता है. ये मेरा हमेशा का. अब उस टाइम पे लगेगा अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट आप देखना हमेशा मेरे साथ कम से कम मेरे लाइफ के 10 एग्जांपल्स हैं, एंड दिस वाज वन ऑफ दैट. तो मैं नेक्स्ट जो मैनेजर से मिली वो इतने अच्छे इंसान थे. उन्होंने मुझे, वो मेरे अभी भी लिंक्डइन में कनेक्शन में है, उन्होंने मुझे सनगार्ड में मेरी होल जर्नी में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया.
और वो प्रोजेक्ट जस्ट शुरू हो रहा था इंडिया में, तो उसके लिए मुझे उन्होंने यूके भेजा। मेरे यूके का जो मैनेजर था वो भी बहुत अच्छे थे। मेरे 2 years was like the best. Like I got like 5 ratings, 200% bonus. मैंने वो टीम सेटअप किया। तो that was my second job. Okay. पुणे में सनगार्ड में। And then you left SunGard? Then no, I didn't leave SunGard. I had to go to Bangalore क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और मेरे हस्बैंड बैंगलोर में थे। तो मैंने पहले ट्रांसफर मांगा, तो वो दे नहीं रहे थे, बोले हमारे पास नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स बैंगलोर का ऑफिस बहुत छोटा था, मतलब तब ऐसा वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो वहां पे 200 ही एम्प्लॉय थे सनगार्ड के, तो वो बोले हमारे पास कुछ है नहीं। तो फिर मैं आई स्टार्टेड लुकिंग आउट अगेन, इंटरव्यूज दिए, फिर से इन्फोसिस का ऑफर मिला, फिर इन्फोसिस बैंगलोर मिला। बट मेरा 2 months का नोटिस पीरियड था, तो 2 months में बैंगलोर में किसी ने रिजाइन कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे किसी ने रिजाइन किया, आप चाहो तो आप ले सकते हो ट्रांसफर। तो मैंने फिर कंपेयर किया, क्योंकि इन्फोसिस बैंगलोर सिटी के बहुत बाहर है और बैंगलोर का ट्रैफिक तो हॉरिबल है, तो और प्लस 9 hours। तो मैंने सोचा कि यार छोड़ो, तो फिर से इन्फोसिस को छोड़ दिया मैंने, 2 बार छोड़ा, और फिर मैं सनगार्ड ट्रांसफर ले लिया। एंड मैं सनगार्ड बैंगलोर में 5 years रही। Okay. So you were total 7 years in SunGard. Okay, 2 years you were in SunGard for 7 years. 7 years. Okay. तो SunGard was my second company in India. Okay. मैंने फिर और स्विच नहीं किया। मैंने इंटरव्यूज दिए, मैं 2 बार बाहर गई, यूएस भी गई, यूके गई, और मैंने बाहर और इंटरव्यूज दिए, बट मेरा था कि मैं इससे बेटर कंपनीज में जाऊँ, मतलब नॉट, मेरा वो हमेशा फोकस रहता था कि एक स्टेप ऊपर होना है, पीछे नहीं जाऊंगी। और लकीली मेरा प्रोजेक्ट भी चेंज हुआ, वो भी लाइक वो ऐसा हो गया था कि हमारा जो करंट प्रोजेक्ट था वो बंद हो गया अगेन बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास 3 months है, इधर आप इंटरनली कुछ ढूंढ लो या आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आई एम लाइक ठीक है, देख लेंगे। तो मैं स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑल्सो, मैं इंटरव्यूज दिए, और तभी फॉर्चुनेटली एक प्राइवेट इक्विटी का प्रोडक्ट था, इन्वेस्ट्रॉन करके, अभी भी है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, ऑल ओवर एशिया, यूएस में बहुत स्ट्रॉन्ग है प्राइवेट इक्विटी का। तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने हाँ बोला। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि इस टीम में ऑलरेडी मैनेजर है, लीड है, इवन इफ यू आर ऑन सेम एक्सपीरियंस आपको ये सब नहीं मिलेगा। एंड आई वाज लाइक आई एम हियर टू लर्न। और मुझे वो जो नया डोमेन मिला, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि तो मैंने बोला कि मुझे आप अच्छा काम दे दो और मेरे काम को रिकॉग्नाइज करो। मुझे बोला मुझे बीए करना है। तब तक मैं मोस्टली टेस्टिंग ही कर रही थी, बट इंटरेस्टिंग टेस्टिंग था, डेटाबेस था, इट वाज नॉट इनफैक्ट यूनिक्स कमांड्स के थ्रू टेस्टिंग। इट वाज नॉट लाइक कि आप सिर्फ एक्सेल से देख रहे हो और एप्लीकेशन टेस्ट करो, ऐसा नहीं था। तो इट वाज इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पे मैंने बोला आप मुझे सिर्फ सीखने दो, ट्रेनिंग दे दो, आई एम हैप्पी। तो दैट्स हाउ आई, सो दैट इज अगेन लाइक अ थिंग कि मैं हमेशा ये देखती थी कि मुझे नया क्या मिल रहा है, क्या नया सीखने को मिल रहा है, ये मुझे आगे हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो आई स्टेड इन सनगार्ड फॉर 7 years, बट आई वर्कड इन 3 different प्रोडक्ट। और जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था, वो जो प्राइवेट इक्विटी जो मैंने 2013 में ज्वाइन किया था, that helped me get a very good job in Luxembourg. तो you never know कि आपको क्या मतलब कौन सी चीज कहाँ ले जाएगी। हमें वो टीम बंद कर दिया गया था, और it was like कि I have to leave SunGard, then I took this project। और अभी मेरा करियर इतना स्ट्रॉन्ग है लक्समबर्ग में कि I can demand कि मुझे अभी करना है, अभी नहीं करना है, मुझे इतना पे चाहिए। तो you know it's a long journey, but every step you take in your journey moves you forward, और eventually वो आपको benefit देता ही है। It actually opens different facets. Exactly. Right? At every stage हमें एक नया learning मिलता है। With that learning we can see the things which we didn't know. You didn't know. मुझे नहीं पता था वो काम करेगा नहीं करेगा। जब मैं सनगार्ड गई, सॉरी लक्समबर्ग गई, तो मुझे बस एक छोटा सा जॉब चाहिए था, क्योंकि घर पे नहीं बैठना था। मुझे लगा मुझे कोई 1000 euro भी दे देगा तो मुझे चलेगा। इनिशियली वर्क परमिट का इशू था वहाँ पे, अभी तो उन्होंने वो भी हटा दिया। अभी स्पाउस को कोई वर्क परमिट नहीं चाहिए। जब मैं गई तब चाहिए था। इट टुक मी 1.5 years। तब मैंने
ये किया कि मुझे घर पे नहीं बैठना है, तो मैंने उनकी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जबकि मैंने ऑलरेडी मास्टर्स थी, मुझे जरूरत नहीं थी, बट मैं बोला कि नहीं, वो लोग 6 मंथ्स के कोर्स करने पे इंटर्नशिप दे रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है कर लेती हूँ। तो even if it was not a lot, what I learned the difference of learning process. इंडिया में टीचर आपको सिखाते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं, कोई बुक्स नहीं, कुछ नहीं। वो लोग आपको एक टॉपिक देंगे, आप खुद रिसर्च करो, आप खुद अपना पेपर बनाओ, आपको ग्रुप्स दे देंगे, आप खुद प्रोजेक्ट्स बनाओ। सो दैट वाज आई ओपनिंग कि ये सो डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग थिंग्स, सेम चीज एक बहुत अलग तरीके से आप सीखते हो। आपको क्वेश्चन पेपर भी नहीं होते एग्जाम्स में, मतलब आपने जो सीखा उसके हिसाब से आप अपना कुछ तो बनाओ और आप पेपर सबमिट करो। अगर टीचर को लगेगा कि आपको आता है तो आपको वो ग्रेड्स देंगे। ओके, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने 6 महीना वो किया, फिर उन्होंने मुझे इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बेसिस पे फिर क्या हुआ, नॉर्मली वर्क परमिट बनने में 3 महीना लगता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कंपनीज लेते नहीं थे हमारे जैसे कैंडिडेट को। बट वर्क इंटर्नशिप से मैंने इमीडिएट ज्वाइन किया एंड देन पैरेलली उन्होंने मेरा वर्क परमिट प्रोसेस किया। बट दैट वाज अ लिटिल हर्डल, मुझे 1-1.5 साल लगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ा, क्योंकि आप 10 साल जॉब करने के बाद आपको फिर से जीरो से शुरू करना है। वहां पे कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा सर्टिफिकेशन है, मास्टर है, कुछ नहीं। फिर जब मैंने एक्चुअली काम करना शुरू किया, मैंने फिर से नेटवर्क बिल्ड किए, लोगों ने मेरा काम देखा, फिर उन्होंने ट्रस्ट किया, फिर धीरे धीरे मेरा वहां पे फिर से नेटवर्क बना। सो दैट आई कैन से अगेन माय फर्स्ट जॉब। That was again a new start. New start, totally new start. Okay. Again I become a student, again नया जॉब ढूंढा, again खुद को प्रूफ किया, तो that's my life, to be honest. Okay. So let's come back a little. So what kind of student were you? And why I'm asking this is, we come from middle class, lower middle class families, and most of the students in this area, our area, Nagpur and surrounding areas, they are all from middle class or lower middle class families. And basic survival का भी कई लोगों को ये होता है. So and your story is, I guess your story, these guys will be able to connect with your story. बिकॉज वो भी ऐसे ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप भी ऐसे ही बैकग्राउंड से थे, एंड योर पॉजिटिव एटीट्यूड श्योरली हैज हेल्प्ड यू, योर लर्निंग एबिलिटी इट हैज हेल्प्ड यू, आपका फोकस ने आपको हेल्प किया हुआ है. सो मे बी दोज गाइज कैन एक्सट्रैक्ट सम गाइडेंस आउट ऑफ इट एंड दे वुड स्टे मोटिवेटेड. सो या, सो मेरी स्टूडेंट लाइफ, मेरी जर्नी एक्चुअली आई थिंक मे बी अभी ये इस ग्रुप में जो भी हमें सुन रहे होंगे, कोई भी एक बच्चा ऐसा होगा जिसकी वर्स्ट सिचुएशन होगी, तो आप समझ लो वही था मेरा. ठीक है. बाकी लोग, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, आपके पास घर है, गाड़ी है, पैसे है, बेसिक नीड्स के लिए, तो आप ब्लेस्ड हो. ठीक है. आप सिर्फ फोकस करो कि आपको कुछ करना है. मेरे बिफोर आई टेल माई स्कूलिंग लाइफ, मैं ये बताऊंगी कि हमारे बैकग्राउंड, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स माइग्रेंट्स थे, दे आर फ्रॉम बांग्लादेश, तो रिफ्यूजीज थे. तो वो जब आए थे उनके पास कुछ भी नहीं था, जीरो, लाइक एक जंगल जो गवर्नमेंट ने दिया, आप घर बनाओ. तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे पेरेंट्स थे, मतलब मेरे मम्मी पापा, मम्मी तो स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि उनका जो गांव था वो जंगलों के बीच में था और उनको स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर का जंगल क्रॉस करना पड़ता था. तो उनको बेसिक एजुकेशन दिया, जबकि मेरी मॉम इज वेरी स्मार्ट, उन्होंने मेरे फर्स्ट एजुकेशन उन्होंने ही की है घर में. पापा लोग लड़के थे तो ठीक है, दे समहाउ चंद्रपुर गए, वहां पे बेसिकली हम लोग इसी रीजन से आते हैं, चंद्रपुर, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, भंडारा डिस्ट्रिक्ट. मम्मी भंडारा डिस्ट्रिक्ट से, पापा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से. तो चंद्रपुर गए, वहां पे नाइट में कुछ तो काम करते थे, दिन में स्कूल जाते थे. सो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड देयर लाइफ. मतलब बिल्कुल एकदम लेबर क्लास. तो पापा ने तो 10th के बाद जॉब शुरू किया. ही वाज अ टीचर, बहुत ऐसे प्राइमरी टीचर. फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना बीए किया, एमए किया, डीएड किया, बीएड किया. तो उनकी लर्निंग भी कभी खत्म नहीं हुई. मैं ऑलमोस्ट 10 साल की थी तब मेरे पापा ने उनका डीएड या बीएड जो भी होता है, जो
टॉप लेवल का होता है वो खत्म किए, मेरे सामने एग्जाम देने जाते थे। तो आई हैव सीन माय पेरेंट्स डूइंग दैट, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था हमारे लिए। मतलब इट वाज, ऐसे नहीं थे कि वो हमें बोलते थे कि ये करो वो करो, हमने देखा उनका। तो क्या था, हम लोग नागपुर में थे पहले, मेरा बर्थ भी नागपुर में ही है, मेरे चाचा डॉक्टर है जो पापा ने उनको पढ़ाया और वो यहीं पे थे। तो हमारा था कि हम नागपुर में रहेंगे, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, अभी हम बच्चे थे, हमें इतना पता नहीं था उनके बीच का जो भी सिचुएशन है। तो मेरे पापा हमको लिटरली एक छोटा सा गांव है, चामोर्शी करके तहसील है, वहां से थोड़ा आई थिंक 15-20 मिनट का रास्ता है से गांव के अंदर। तो ये कॉर्पोरेशन स्कूल होते थे उस टाइम पे, इवन यूनिफॉर्म भी हमको मिलता था गवर्नमेंट से। तो स्कूल में डाले हिंदी मीडियम, 4th स्टैंडर्ड तो फुल हिंदी था, 5th से सिर्फ एक सब्जेक्ट इंग्लिश था। Oh, so you have studied in Hindi हिंदी medium? कंप्लीटली हिंदी। तो that also from a very remote place. वेरी रिमोट, आज भी रिमोट है, अभी भी रिमोट है, और उसके भी गांव में। उससे भी अगर वो अंदर मैं मतलब मैं याद करूं, मेरा पहला स्कूल था ऐसे बड़ा सा टीन का शेड, बीच में कोई पार्टीशन नहीं, 4 क्लासेस बैठी हुई है, फर्स्ट सेकंड, मतलब इधर के बच्चे चिल्ला रहे हैं सब कुछ। बट आई थिंक मुझे कभी इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद था और मेरा हमेशा से फोकस था कि मुझे पढ़ना है और कुछ करना है और आगे बढ़ना है। और मम्मी भी हमेशा मतलब बोलती नहीं थी, बट शी वाज ऑलवेज लाइक कि नहीं, बच्चे कुछ करना चाहिए। और मैं पढ़ाई में अच्छी थी, आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्ड। मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था और पापा मुझे घर पे पढ़ाते थे, मेरे ग्रैंडपा मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। और मुझे इन नेचुरली मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी पढ़ने की। मुझे रिसोर्सेस नहीं थे मेरे पास, मैं तो मुझे जो मिलता था कटे हुए पेपर, वो जो दुकान में लोग कुछ बेचने के लिए पेपर रखते थे उसमें से कुछ पढ़ लेती थी मैं, क्योंकि घर पे तो आता नहीं था। और पापा के पास थोड़े बहुत जो भी बुक्स पढ़े होते थे, मैंने तो कुछ कुछ ऐसे बुक्स पढ़े जो मुझे उस टाइम पे समझ में भी नहीं आया, क्योंकि वो मम्मी पापा के थे। और बाद में मुझे वो दोबारा पढ़े मैंने वो समझने के लिए। तो आई लव रीडिंग। फिर मेरा 4 साल 4th स्टैंडर्ड खत्म हुआ। मैं तब बंगाली एक सब्जेक्ट लिया था तब, क्योंकि बंगाली गाँव था। तो आई थिंक दैट वाज वन गुड थिंग, क्योंकि आज मुझे पढ़ना लिखना आता है बंगाली में और प्लस हिंदी। और पापा टीचर थे, तो लकीली दैट हेल्प कि वो मुझे घर पे इंग्लिश पढ़ाते थे और मैथ्स पढ़ाते थे, तो मैं जल्दी सीख गई वो सब। मम्मी भी पढ़ाती थी मेरी। फिर 5th से 7th स्टैंडर्ड अनदर स्कूल, बट उसी गांव में था, एक दूसरा स्कूल था। इन अ वे आई थिंक कुछ कुछ चीजें हैं जो बच्चे फोकस नहीं करते, बट आई लव्ड दैट लाइफ, क्योंकि वहां ना एक इंक्लूसिवनेस था। मतलब आपके टीचर्स आपको जानते हैं, आप सारे बच्चों को जानते हैं, कंपटीशन था, लेकिन आप डिमांड भी कर सकते हो। Okay. जैसे मैं बोलती थी कि आई वॉज वेरी वीक इन स्पोर्ट्स, लेकिन मुझे करना था, तो मैं बोला आप मुझे एक्स्ट्रा में रख लो। मतलब मैं नहीं खेलूंगी, बट आप मुझे लेके चलो, एक्स्ट्रा में रख लो। तो एक्स्ट्रा में रहते रहते थोड़ा खेल भी लिया था मैंने। तो दैट वाज वन साइड। सेकंड, हम लोग पूरा विलेज में हमको लेके जाते थे क्लीन अप कराने, वो सब चीजें। फिर मैं प्ले में पार्टिसिपेट करती थी। इंटर स्कूल ये भी होता था, पेंटिंग। मैं बहुत अच्छी स्पीच देती थी, तो मेरे टीचर्स मुझे हर जगह पे जहाँ पे भी स्पीच कंपटीशन होता था मुझे ले जाते थे। बस मैं हिंदी में देती थी, वहाँ मराठी बोलते थे, मेरी मराठी अच्छी नहीं थी। तो दैट्स हाउ माय इनिशियल 7-year जर्नी, एकदम लिटरली विलेज। मेरे पास तो इनफैक्ट चप्पल भी नहीं थी, मैं खाली पैर भी स्कूल गई हूँ, कुछ टाइम मम्मी का भी पहन के गई हूँ, बाटा का चप्पल। That was in 7th. That till 7th standard. तो मैं फिर पापा ने देखा कि उसके बाद वहाँ के गांव के बच्चे चामोर्शी पढ़ने जाते थे 8th स्टैंडर्ड से, वहाँ पे हाई स्कूल होते थे। और पापा ने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। अब अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग है, पापा ने एक घर बनाया था जो कि नोवेयर, नो मैंस लैंड। अभी तो बहुत डेवलप हो गया, तो हमारे घर में लाइट भी नहीं थी। तो
फ्रॉम 8th to 10th स्टैंडर्ड गढ़चिरौली में, फिर 10th का बोर्ड में आई स्कोर्ड 84%। तो दैट इज अ वेरी गुड पर्सन। हाँ, उस टाइम पे अच्छा स्कोर था। अभी तो मोस्टली बहुत 90 के ऊपर जाता है, बट तभी 80 वाज अ गुड स्कोर। देन मेरे अंकल नागपुर में थे, तो वो मुझे नागपुर लेके आए। आई जॉइन दीनानाथ हाई स्कूल 11th-12th स्टैंडर्ड, एंड एज आई थिंक अर्लियर आई मेंशन, तो मैंने ये लिया था जनरल सब्जेक्ट, मतलब बायोलॉजी भी था और मैथ्स भी था। तो मेडिकल एंट्रांस दिया, बट आई स्कोर्ड आई थिंक 47, और उस टाइम पे जनरल कैटेगरी के लिए कुछ 50% था, तो आई कुडंट स्कोर एमबीबीएस। पापा ने फिर भी मेरा बीएमएस में एडमिशन कराया था, बट फिर जब मेरा इंजीनियरिंग में हो गया तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। फिर इंजीनियरिंग के एडमिशन वाईसीसी वो भी इसलिए क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था अच्छा कॉलेज। आई थिंक रामदेव बाबा वाज गुड कॉलेज देन। शायद मुझे मिल भी जाता, बट मैंने अप्लाई नहीं किया था वहाँ पे। फिर वाईसीसी में एज यूजुअल, जैसे अभी का कॉलेज का मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट वहाँ उस टाइम पे वही स्टैंडर्ड, मतलब आप फर्स्ट ईयर करो, फिर सेकेंड ईयर आईटी, देन अगेन लाइक नॉट मच प्रिपरेशन, बट जो भी सब्जेक्ट्स थे वो अच्छे से पढ़ाई किया मैंने। एंड फिर फाइनल ईयर के बाद एज आई मेंशन इन द फर्स्ट जॉब का, तो दैट इज लाइक द होल जर्नी। बट यही होता है, आपका फर्स्ट जॉब या आपका फर्स्ट कॉलेज वो फर्स्ट नहीं होता है। इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ ऑल योर पास्ट। आपका डे वन से कैसा है, तो ओनली थिंग हेल्प्स इज आप एवरी सिंगल डे को आप समझ लो एक न्यू अपॉर्चुनिटी। आप नया कुछ ऐड करते जाओ, सीखते जाओ, एंड दैट विल हेल्प यू। और फर्स्ट जॉब भी अगर टफ भी है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि डोंट गिव अप, और फोकस तो है, ठीक है कि एक जॉब चाहिए, बट पैरेलली भी ऐसे अपना देखते रहो। मैंने ये भी देखा था, मैं एक जगह पे गई थी, उनका मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग था। मुझे बोले 4,000 देंगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूंगी, अगर आपको मुझे हायर करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कमिट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अगर मेरा जो है वो मिलेगा तो मैं चली जाऊंगी। तो आई वाज वेरी ऑनेस्ट विद दैट। तो आप फोकस रखो फर्स्ट जॉब पे, बट पैरेलली आप अपना लर्निंग कभी स्टॉप मत करो, और छोटा छोटा काम करते रहो। एक चीज मैं और बोलूंगी, जो इंडिया में जो ब्लू कॉलर जॉब होते हैं, जो आप इलेक्ट्रिशियन ले लो, कारपेंट्री ले लो, इसको अच्छा नहीं समझते, क्योंकि देर आर मेनी पीपल, बट इसकी इतनी वैल्यू है ना, अगर आप सही से करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जब करके छोड़ दो, बट अगर किसी को इंटरेस्ट है डेफिनेटली परस्यू करो, क्योंकि फ्यूचर में और अच्छा होने वाला है इस चीज की। आज मुझे कोई अगर ऐसा मिला जो एक्सपर्ट है ना, मैं उसको लग्जमबर्ग लेके जाऊं मेरे साथ। ट्रस्ट मी, मेरा घर है लेकिन मुझे इंटीरियर करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। तो and it is also very expensive. वेरी एक्सपेंसिव, तो क्योंकि वो स्किल है, हम इंडिया में उसकी वैल्यू नहीं करते, बट वो इतनी अच्छी स्किल है। तो स्किल आपका कोई भी हो, आपका टेस्टिंग हो, आपका कोडिंग हो, इवन कुकिंग, हर एक के पीछे पूरा मैनेजमेंट होता है, पूरा प्रोसेस होता है। आप हम लोग, अब मम्मी लोगों को आप ग्रांटेड लेते हो, बट आप उनको देखो वो घर कैसे चलाते हैं। आप उनको जितना पैसे दोगे उसमें सामान लेंगे, कुक करेंगे, सबको खिलाएंगे, फिर बचा हुआ मैनेज भी करेंगे। दैट इज अ होल मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आपकी लर्निंग हर एक छोटी छोटी चीजों से होती है। आप किसी को देख के सीख सकते हो, आप ऑनलाइन सीख सकते हो, आप अपने दोस्तों से सीख सकते हो, बट अच्छी चीजें सीखो। मतलब आपको जो चाहिए वो सीखो, जो नहीं चाहिए उसको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो रैबिट होल में नहीं जाना है। और मैं अभी भी थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ। मैं इवन इफ बहुत ऑनलाइन चीजें, मैं अभी भी बुक्स खरीद के पढ़ती हूँ। तो अगर किसी को पसंद है, क्योंकि बुक से आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप अगर आईपैड या फोन लेके बैठे हो, आपका मन करेगा अरे मैं थोड़ा इंस्टाग्राम कर लेता हूँ या थोड़ा फेसबुक कर लेता हूँ। अगर आप बुक लेके बैठे हो, अपना फोन दूर रख दो, आप बुक पे फोकस करो। तो सबके अपने अपने स्ट्रेंथ है, जो भी लेना है आप वो लो, आपकी लर्निंग रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। और जब तक आपके पास जॉब नहीं है, समझ लो ये आपका गोल्डन पीरियड है। ये जो टाइम मिल रहा है ना, ये टाइम नहीं मिलेगा वंस यू स्टार्ट वर्किंग। तो आपके पास जितना टाइम है उसको स्प्लिट कर दो डिफरेंट चीजें सीखने में।
मतलब अगर आप कितना पढ़ाई करोगे, आप थक जाओगे ना पढ़ के, तो उसके बाद आप 2 घंटा कुछ और काम कर लो। बहुत फनी है, लेकिन मैं और मेरी बहन हम लोग मेहंदी क्लास जाते थे, रंगोली क्लास जाते थे, मतलब हम लोग करियर नहीं बनाए, बट इट्स गुड, लाइक यू एंजॉय, यू नो। मंडाला आर्ट करते थे। मैंने अभी यहाँ आके 2 दिन का बेकिंग क्लास किया मैंने। एग्जैक्टली, मैंने 2 दिन का बेकिंग का वर्कशॉप किया, एंड आई मेट लाइक 5 गर्ल्स, और जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो ऐसे। जिनकी घर पे खेती है, आप फार्मिंग के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि आई डोंट नो महाराष्ट्र में कैसा है, बट मैंने साउथ में बहुत देखा कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप टेक्नोलॉजी का मतलब जो ये भी जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है ना, उसको राइट यूज करने से ज्यादा मतलब बेटर है। मतलब जॉब तो है ही, आप करोगे, आप उसमें कंटिन्यू करोगे, लेकिन ये रियलिटी है, जब आपको जॉब मिल जाएगी ना, फिर आपको लगेगा यार मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था, मजा नहीं आ रहा। ये होगा, ये होगा, लेकिन आप कभी कभी मजबूरी में करोगे क्योंकि आपको EMI भरने हैं। कभी कभी आपको कोडिंग पसंद है तो आप करोगे, बट जब आप उसको मिक्स करोगे ना आपकी डिफरेंट लर्निंग के साथ, तो इट विल बी फन। तो फर्स्ट जॉब पे फोकस करो, बट लर्निंग स्टॉप मत करो। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। So yours was a roller coaster ride, we can say. Very right? much. There were a lot of ups and downs. Ups and downs. Very much. And you sailed through. Yes. Right? Just hats off to you, Rajni. Yeah. Right. So very good. And I'm very sure this is, I mean, you're an inspiration for a lot of us. Not just us, but for the students of this particular generation. I think you can be a very big, coming from a municipality school, Hindi medium school. That you're definitely. currently in Luxembourg. Yes, of course, you are an inspiration. Definitely, but I think everybody can be inspiration. Just that, you know, आपको कोई नहीं, आपको सिर्फ खुद पे बिलीव करना है. Yes, I can do it. That is absolutely true. Just believe in yourself that you can do it, and you ask help. कुछ लोग ना help नहीं मांगते. There is no problem asking for help. Yes. मुझे ये नहीं आता, मुझे सिखाओ. मेरे पास ये नहीं है, मुझे चाहिए, मुझे दे दो. Can you help me with that? Yes. और आप जब humble होके बोलते हो ना, तो आपको 10 लोग मिलते हैं हेल्प करने के लिए. Yes, that is true. Be humble, be genuine, be honest. आपको अगर एक बुरा इंसान मिलेगा तो आपको 9 अच्छे लोग मिलेंगे. That's the fact. That is true. So, at last, Rajni, one message which you would like to give to the student community right now, which probably would help them in getting their first job. You can face the camera and. Okay. Yeah. One last message. I think मैंने already तो बोल ही दिया है जो मुझे हेल्प किया है, and I think it helps everyone. अभी आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को देख लो जो सक्सेसफुल है लाइफ में, सब में आपको एक कंसिस्टेंट होगा कि उन्होंने हमेशा 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 सीखने की कोशिश की है, और उन्होंने अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव किया है. मतलब आज मैंने अगर A सीखा तो कल मैं B सी, फिर आगे और. तो आप और सिर्फ एक चीज पे नहीं, एवरीथिंग लाइक सराउंडिंग, और पढ़ते रहो. ठीक है, इंस्पिरेशनल बुक पढ़ो, पॉजिटिविटी पे पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, साइंस पढ़ो, जो भी पढ़ो. कार के बारे में, कार पसंद है कार के बारे में पढ़ो, एरोस्पेस के बारे में पढ़ो. आप जब एक टॉपिक पर पढ़ते हो तो आप धीरे धीरे आपका डाइवर्सिफाई होता है, और आप अपने जो दूसरे लर्निंग है उसको मिक्स कर सकते हो. तो ऐसे नहीं कि आप सिर्फ कोडिंग करो, बट कोडिंग क्यों कर रहे हो, है ना? आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो क्यों बना रहे हो, कहाँ यूज होगा, क्या इम्पैक्ट होगा उसका. तो मेरे लिए बेस्ट है कि आप अपना फोकस रखो, और फोकस के साथ साथ अपना लर्निंग रखो. इट विल टेक यू वेरेवर यू वांट टू गो. यू विल नेवर फेल. और अगर आप एक स्टेप पीछे आते हो, दैट इज बिकॉज यू आर गोना जंप एंड गो फॉर स्टेप फर्दर. तो डरना नहीं है, और फेलियर से तो कभी नहीं डरना है. फेलियर इज लाइक आपको स्टेपिंग स्टोन है, आपको सिखाएगा. फेलियर से कभी नहीं डरना है. जैसे मैंने ऑन द डिस्कशन भी बोला है कि
मेरी लाइफ में कम से कम 10 ऐसे हैं जो कि हाँ अरे कुछ बुरा हुआ, टेक अ पॉज, एनालाइज एंड देन गो। तो एक मैसेज नहीं, देयर आर मल्टीपल मैसेजेस जो मेरे खुद के लाइफ से भी है और जो मुझे हेल्प किए हैं वो, और आपके अपने भी खुद के भी होंगे, सबके अपने अपने हैं। हाँ, आप क्योंकि हम अलग अलग जर्नी से आते हैं। आप आपका जो भी स्ट्रेंथ है उसको पकड़ के रखो, वीकनेस पे काम करो और आगे बढ़ते रहो, हो जाएगा। So thank you, Rajni. Thank It you was very really, much. really a pleasure talking to you. And Pleasure is I'm mine as sure well. our viewers would be benefited from this. Hopefully. Right. So thank you. Thank you so Thank much you for so your much. pleasure.